Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amresh Sahu. How are you? I hope you all are fine. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। BSc ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ନାମକ ଗୋଟେ ବୁକ୍ 2026 ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ 80% କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ 2025ରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାର୍ଟର ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେଟ୍ 1ରେ ଥିବା 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ବାକି ମ୍ୟାଥ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଲେକ୍ଚରଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ଅଛି କ'ଣ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସନ୍ତୁଳିତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ PQR ଚିହ୍ନଟ କର। ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନ ତାପ, ଏଟା ଗୋଟେ ତାପୀୟ ବିଘଟନର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ। ଦେଇଛି PbO ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି O2। ତ ଆମର ଏଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ମାନେ ସମତୁଲ କରିବା। ତ P ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ନଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ, ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ପାର୍ଟକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା, O3 2 ଅଛି ହୋଲ୍ 2, ତ ମାନେ O କେତେଟା ଅଛି 6ଟା ଅଛି। 6 ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ କେତେଟି ଅଛି, O ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି O ଦୁଇଟି, ଏଠି ଅଛି O ଦୁଇଟି, ତ ଟୋଟାଲ 5ଟି। ତ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡରେ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ Q ବଦଳରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏଇଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ 6ଟା ହେଇଯିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ 6ଟା ଅଛି, ତ ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଲେଡ୍ କେତେଟା ହେଇଗଲା, 2ଟି। ଲେଡ୍ 2ଟି, ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଲେଡ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ P ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଲେଡ୍ 2ଟି ହେଇଯିବ। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ପୁଣି କେତେଟା ହେଇଯିବ, 6ଟା ଥିଲା, ଇଏ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 12ଟା, ତ 12ଟା ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଆମର 6ଟା ଅଛି, ତ ଏଠି 2ଟା, ଏଠି 2ଟା, 4ଟା। ଏଇଠି ଯୋଉ 2 ଅଛି, ତ 4 ଆଉ 8ଟା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ R ଜାଗାରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ Pb ବି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ହେଲା ଆମର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ 2, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯଦି 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଠି 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହବ, ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 2 ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେ ଅଛି, 4 ହେଇଛି। ତ ଯଦି 4 ଅଛି, ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ 4ଟା ଅଛି, କାହିଁକିନା N ହୋଲ୍ 2 ଅଛି, 2 ଦୁନେ 4। ତ ଆମର ଅଲରେଡି ସବୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ। ତ ଇକ୍ୱେସନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା, P ର ଭ୍ୟାଲୁ 2, ଏଠି Q ର ଭ୍ୟାଲୁ 2, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ R ର ଭ୍ୟାଲୁ 4। ତ 2 to 4 କେଉଁ ଅପସନ ଅଛି ଦେଖିବା, A ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, NaCl plus AgNO3 ଆରୋ ମାର୍କ AgCl plus NaNO3। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହିଁକି ଏଠି Na କାହାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ କରୁଛି, Ag କୁ Ag ଡିସପ୍ଲେସ କରୁଛି। ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି CaO plus H2O ଆରୋ ମାର୍କ CaOH ହୋଲ୍ 2, ମାନେ କଲି ଚୂନ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ସମିତ ଚୂନ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ମଧ୍ୟ।
तो थर्ड देखिबा थर्ड देछि KNO3 प्लस H2SO4 आरो मार्क KHSO4 प्लस HNO3 तो एटा मध्य तो ठीक ठाक अच्छी इक्वेशन टी किसी प्रोब्लेम नहीं तो आमर तीन टांग इक्वेशन ठीक अच्छे ये डी ऑप्शन देख कौन अच्छी ना लेफ्ट साइड रे ओ नहीं ऑक्सीजन जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड आरो मार्क Zn जिंक सल्फाइड प्लस HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड तो तेणुक ये आमर एटा कौन प्रोब्लेम अच्छे देखो लेफ्ट साइड रे ऑक्सीजन नहीं किंतु राइट साइड रे ऑक्सीजन अच्छे एटा कि आमर भूल अच्छी तो क्यों भिन्न तो आंसर हम डी डी आमर भिन्न बाकी सब इक्वेशन ठीक ठाक अच्छे डी इक्वेशन प्रोब्लेम कौन ना लेफ्ट साइड रे ऑक्सीजन नहीं राइट साइड रे ऑक्सीजन अच्छी एटा भूल अच्छे इक्वेशन असंभव एबळे हाई परिबो नै काइना आमर वस्तुज संरक्षण नियम अनुसार तो लेफ्ट साइड रे जहाँ जहाँ मौलिक रहइबो राइट रे सेया रहइबो आ वस्तु तो भी समान रहइबो तेणुक एटा भूल अच्छे तो डी होची भिन्न तो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 रे कौन देछि ना जलीय द्रवण रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा केउ आयन उत्पादित होय हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो संकेत कौन HCl HCl जलीय द्रवण माने H2O सहित यदि रासायनिक प्रतिक्रिया करे ताले की आयन दबो ना प्रथमे हमर HCl ब्रेक है कि कौन हम आयन H प्लस आउ को Cl माइनस गोटे प्लस आ गोटे माइनस युक्तात्मक आयन गोटे विजुक्तात्मक आयन तो नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम ना H प्लस आयन H2O सहित कंबाइन करिकी हमर कौन दबो ना H3O प्लस जोटा को हमें हाइड्रोनियम आयन बोली कहते तो प्लस Cl माइनस तो हमर करेक्ट आंसर कौन हम हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस तो आंसर कोड अछि देखिबा तो डी डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन अछि क्वेश्चन नंबर 4 कहूची पीएच रो मूल्य 7 रु 14 को परिवर्तन हेले OH आयन संख्या कौन हम बढ़िबो ना कमिबो ना समान रहइबो ना प्रथमे कमिबो तापरे बढ़िबो तो पीएच रो मूल्य 7 रु 14 तो हमर 0 रु 7 मध्य रहिले सेटा हबो अम्लीय 7 हेले न्यूट्रल आउ 7 रु 14 7 रु अधिक आ 14 पाखा पगिर वाले हमर कोन हबो ना सेटा क्षारीय तो हमर क्षारीय माने OH आयन संख्या कोन हबो रो घनता बढ़िबो तण करी एडी आंसर कोन हबो ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन दैछि आसो देखिबा गोटे सबल अम्ल ओ गोटे सबल क्षार रे प्रस्तुत लवण रो पीएच रो मूल्य केते तो हमर अम्ल आ क्षार दुईटी जदी सबल थाए ताले दी जन को दी जन परस्पर कोन करिवे नलिफाई कर देबे प्रशमनीकरण कर देबे जा द्वारा जो लवण सृष्टि हबो से अम्लीय हबो नाही कि क्षारीय हबो नाही तो जा जे अम्लीय नुह कि क्षारीय नुह तार पीएच रो वैल्यू केते ना 7 जोडे कि ऑप्शन नंबर डी रे दे तो डी इज द करेक्ट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन नंबर 6 केउ भौतिक गुण जोगु मंदिर घंटी धातु रे तयारी होई थाए तो धातु रो बहुत हमर भौतिक गुण सब अछि कोन कोन देखिबा तो गोटे गुण हला नमनीयता माने कोन ना हमें तादरु ताकू धातु को बाडेगी ताकू हमें चदर तयारी करि परिबा एटा हला नमनीयता गुण तो चदर तयारी कले करिवार जो गुणटा को सेटा होची चादर तयारी करिया धातु को पिटिकी सेटा हला धातुर नमनीयता गुण पई धातुर तन्यता गुण पई तन्यता का कुआ जाय तो जो धातु को हमें जदी टाणी की ताकू तार तयारी करि परिया तार प्रस्तुत करि परिया धातुर ये गोटे गुण अछि तनको ताकू तन्यता कहबा नमनीयता हला चादर तयारी करिया तो धातुर ध्वनि धातु धातु लिखछि डबल लिख देछि प्रिंटिंग मिस्टेक हेछि तो लिखिया कथा गोटे तो धातु ध्वनि सृष्टि करे तो धातु ध्वनि सृष्टि करे बोली हमें मंदिर घंटी ताकू धातु रे तयारी करथांती तो हमर करेक्ट आंसर कोन हे जिवो सी सी होची हमर करेक्ट आंसर आ गोटे देछि धातुर कठिनता धातु तो साधारणतः कठिन
এটা ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହବ? ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଧାତୁରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଧାତୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଘଣ୍ଟି ଆମର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସି। ତ ସି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇଏ ହବନି, ଆଉ ଏ ବି ଆନ୍ସର ହବନି, ଡି ହବନି, ଆମର ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଠିକ ଅଟେ? କୋଉଟା ସଠିକ? ତ ଧାତୁର ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ହେଲା ସଠିକ, ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା କେଦାରନାଥ, କା, ମାଲି, आलू, जरा, फिका, पकाता है। जरा माने जेडेन, फिका हला एफी, पकाता हला पीबी, हे हला हाइड्रोजन। से भली हमर आ गुडे अछि कोन ना आ गुडे स्टोरी शॉर्ट ट्रिक मन रखियो। हाई कोट हे रे एठी आ एच नो एच जी जोड़े पारद। हाई कोर्ट है आपका, आप माने ए पी, कार किछि नै एमति खाली गोटे शॉर्ट ट्रिक माध्यम मन रखियो। तो ए रे कोन फास्ट ए रे हला एच जी जोड़ा हला सिल्वर, नेक्स्ट ए रे हला ए यू सोना गोल्ड, पी रे हला पीटी। तो केदार के रे हला और पोटेशियम, केदार नाथ का, माली मैग्नीशियम, आलू हला एल्यूमिनियम, जरा जेडन जिंक, फिका फेरम फेरस जोटा कि हमर आयरन, आउ पकाता रे पी रे पीबी सीसा पकाता है। तो से बरी हमर एळा गोटे आ गोटे स्टोरी होची हाई कोर्ट है आपका। एमति करी हम मन रखिया। ता द्वारा कोन हमर सुविधा हबो ना सक्रियता अनुक्रम आराम से हमर मने रही परिबो। जब हम बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करी परिबा। तो एठी देखिया कि प्रथम अछि। तो प्रथम सक्रियतार अनुक्रमर सबठारु अधिक किए सक्रिय ना पोटेशियम। तो पोटेशियम फर्स्ट को ऑप्शन अछि सी। तो हमर सी तो करेक्ट आंसर जणा पड़ी जाउची एतिकिरु। तथापि हमें चेक कर दवा पोटेशियम परे परे किए सक्रिय। तो हमर जेडएन देखो एठी अछि के, एठी अछि के, एठी अछि जेडएन, तापर अछि केते के कॉपर, एठी अछि देखता तळगु लिखा कथा जगह नै मैं लिख देछि कॉपर। नेक्स्ट के प्रतिक्रिया तो ए यू। हमर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिंक अमालगम केउ दुईटी धातुर मिश्र धातु? तो जिंक अमालगम हमर पारद सहित जिंक मिसले जिंक अमालगम कह जाय। तो एटा को ऑप्शन अछि देखिबा। तो डी एटा हला पारद, हाइड्रोजन लैटिन नेम पारद को इंग्लिश में मर्क्यूरी कह जाय। त लैटिन नेम हाइड्रोजन रो जो तार संकेत आछि तो एचजी। तो एटा डी इज द करेक्ट आंसर जिंक अमालगम। हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 9 उक्त हाइड्रोकार्बन रे समस्त कार्बन कार्बन मध्य रे डैश बंध थाए। तो पृक्त हाइड्रोकार्बन दुई प्रकार हमर गोटे हला पृक्त आ गोटे अपृक्त। तो पृक्त हाइड्रोकार्बन रे हमर जो हाइड्रोकार्बन रो कार्बन कार्बन मध्य एक बंध थाए ताको पृक्त हाइड्रोकार्बन कह जाय। तो करेक्ट आंसर होचे हमर ए। आ दुई किंबा तीन बंध थिले ताको अपृक्त हाइड्रोकार्बन कह जाय। तो हमर करेक्ट आंसर हला कोन एठी पृक्त हाइड्रोकार्बन समस्त कार्बन कार्बन मध्य रे एक बंध थाए। ए इज द करेक्ट आंसर। हमर क्वेश्चन नंबर 10 देखिया। तो 10 रे कोन कहिछि 10 रे कहिछि इथानल सोडियम धातु सह प्रतिक्रिया करी केउ दुईटी उत्पाद सृष्टि करथाय। तो इथानल पिला माने तमे जानथो इथ माने हमर दुईटी कार्बन। तो दुईटी कार्बन नबा आ ऑल इथानल इथेन प्लस ऑल ऑल हला हमर अल्कोहल रो। तो दुईटी कार्बन दीटा कार्बन रहइबो एठी इथानल रे आ गोटे अल्कोहल रहइबो। अल्कोहल रो कोन अछि ग्रुप अल्कोहल हला सिंगल बॉन्ड ओएच। तो एठी सी मैक्सिमम 4टा बंध हमर कर परिबो बंध बांधी परिबो। एठी दुईटी बंध अछि लेफ्ट साइड रे राइट साइड। तो एठी गोटे हमर एच सहित आ दुईटा बंध बांधी परिबो। तो CH2 से बळा एठी ए जो कार्बन टी हमर लेफ्ट साइड रे अछि सेटा
गोटे बंध बांधी गोटे कार्बन सहित तो आउ 3टी कार्बन सहित बंध बांधी पार तेणुक आम CH3 यहाँ आमर होगा इथानल इथानल सोडियम सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले सोडियम माने सोडियम है Na आम रासायनिक प्रतिक्रिया कर तो क्यों दुईटी उत्पाद सृष्टि करें तो उत्पाद कौन हम ना गोटे हम CH3 हम तो गोटे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ओ माइनस एच टा हमर सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करी Na प्लस प्लस कौन हम ना हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी हाइड्रोजन केबे भी एका रही पारे ना तेणुक H2 तो आमर यही उत्पाद ना टी कौन है ना यहाँ सोडियम इथॉक्साइड तो सोडियम इथॉक्साइड आउ कौन उत्पन्न कर हाइड्रोजन तो को ऑप्शन अच्छी ना सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मिथाइल को क्षारीय के MnO4 उपस्थित जारण कले कौन तैयारी हेबो तो मिथाइल रो हमर संकेत कौन अच्छी हम तो मिथ माने गोटे कार्बन रहिबो तो CH3 मिथानल अल्कोहल ग्रुप रो तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH एटा हला हमर मिथानल मिथानल का उपस्थित रे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 आर उपस्थित रे कौन सृष्टि हम ना आर उपस्थित रे जारण जारण माने KMnO4 कौन ऑक्सीजन अच्छी तो आ सहित ऑक्सीजन मिसिबो तो कौन हम माने हमर प्रथम हम फॉर्माल्डिहाइड हम जार संकेत है HCO तो हमर एटा हला फॉर्माल्डिहाइड ये जो जैविक आना है फॉर्माल्डिहाइड आ नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम ना सेटा फॉर्मिक एसिड रे परिणत हो जिवो तो HCOOH एटा हला फॉर्मिक एसिड हमर आंसर कोड हो फॉर्मिक एसिड देखिया तो बी इज द करेक्ट आंसर मेंडेलिव पर्याय सारणी रे केतोटी मौलिक स्थान पाइथिला तो हमर मेंडेलिव पर्याय सारणी रे 63 टी जोडे के ऑप्शन सी रे अछि सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देजी आधुनिक पर्याय सारणी रो पर्याय गुडी करे बामरु डाणु गले कौन हुए देखिबा जोटा हुए नहीं सेटा हम हमर आंसर मौलिक गुड़िकर धातु प्रकृति कमी जाए हाँ ठीक अच्छे एटा कौन हमर मौलिक गुड़िकर धातु प्रकृति कमी जाए कारण पर्याय सारणी आधुनिक पर्याय सारणी बाम पटे धातु मझे अच्छे उपधातु आ दक्षिण पटे आम कौन अच्छे राइट साइड डाण पटे सेटा अच्छी अधातु तो धातु प्रकृति कमी जीव तो ठीक अच्छे तो यहाँ हुए तो ये आंसर हेनी तो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या वृद्धि पाए तो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या वृद्धि पाए ये भी ठीक अच्छे वृद्धि पाए तापर कमे कि प्रथम तो वृद्धि पाए तो ये गोटे बार कह गले पूरा तो ठीक ना कि संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या वृद्धि पाए देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कौन अच्छे परमाणु गुड़िक सहजरे इलेक्ट्रॉन त्याग करिपारंती इलेक्ट्रॉन त्याग करिपारंती जो धातु गुड़िक आम इलेक्ट्रॉन त्याग करिपारंती से माने हेले साधारणतः धातु जे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती से माने हेले अधातु तो इलेक्ट्रॉन आम धातु गुड़िक बाम पटे अच्छा तो परमाणु गुड़िक सहजरे इलेक्ट्रॉन त्याग करिपारंती तो बाम पटे थिबा धातु गुड़िक सहजरे इलेक्ट्रॉन त्याग करते किंतु से कहि बामरु डाणु को तेणुक डाणु गले इलेक्ट्रॉन गुड़िक से अधातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिपारंती तो एइटा हमर आधुनिक पर्याय सारणी गोटे कौन बामरु डाणु गले एइटा हुए नाही तो यही हम हमर करेक्ट आंसर यही हुए नाही से कौन हुए नाही पचारछि कोटा एइटा हुए नाही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिपारंती हेतिला ठीक हेता तो त्याग करे एइटा भूल अछि तो एइटा हमर आंसर ऑक्साइड गुड़िक ऑक्साइड गुड़िक दे देछि गुड़िक अधिक अम्लीय होइथाय तो हमर दक्षिण आड़े कौन अच्छी अधातु तो अधातु ऑक्साइड गुड़िक साधारणतः अम्लीय तो ये भी ठीक अच्छे तो हमर करेक्ट आंसर है
हुए ना पचार तेणुकर सी हूँ आम करेक्ट आंसर। तो अधातव गुड़िक अधातव अक्साइड गुड़िक अम्लीय आ धातव अक्साइड गुड़िक क्षारीय एटा मन रख अरे अधातव अरे अक्साइड तो अरे अम्लीय एवं गोटे सटिक कर मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 गोटे अवतल दर्पणर जदि वक्रता व्यासार्ध 24 सेंटीमीटर अवतल दर्पण मान यहाँ अवतल दर्पण तो उत्तल हेले वक्रता व्यासार्ध कौन हम पॉजिटिव आउ अवतल दर्पण देखिए वक्रता व्यासार्ध के हम नेगेटिव तो 24 माने -24 तो आगे देखिए आस ये प्रमुख अक्ष ये बिंदुटा है पी एटा पी तो ये आमर सी वक्रता केंद्र हेले तो यहाँ हम आमर पूरा मझे मझी कौन हम मझा मझी पूरा मझे रहा एफ तो यहाँ वक्रता व्यासार्ध तार माने दर्पण ठारू सी पर्यंत दूरता कहते वक्रता व्यासार्ध यहाँ हम आर तो आर केते देइछि एठी तो यहाँ नेगेटिव हम तो आर इज इक्वल टू 24 देइछि यहाँ हम -24 सेंटीमीटर आ कौन पचार फोकस दूरता तो फोकस दूरता के स्मॉल एफ के दर्पण रो पोल ठारू लेफ्ट को एफ पर्यंत दूरता है फोकस दूरता जोड़ा कहते स्मॉल एफ केमी बाहर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 जोड़ा के हम -24 बाय 2 केते -12 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर तमरा आंसर कोड अच्छे 12 अच्छे माइनस दवा कथा कि खाली फोकस दूरता के पचार तो लेफ्ट साइड पर है कौन दर्पणर लेफ्ट को तेणुक यहाँ माइनस तो आम करेक्ट आंसर हम कौन बी बी इज द करेक्ट आंसर तो फोकस दूरता है 12 सेंटीमीटर तो जोड़ा माइनस हवा कथा 12 प्लस दे तो बी हूँ आम करेक्ट आंसर। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 कौन देछि ना गोटे डाक्तर जड़े डाक्तर +2.5 पावर र संशोधनकारी लेंस व्यवहार करने को निर्धारण कर लेंस रो फोकस दूरता केते तो पावर देछि लेंस रो पावर केते तो लेंस रो पावर देला +2.5 तो पावर केते पी होछि +2.5 डायोप्टर डी है डायोप्टर तो आमर आर फोकस दूरता तो फोकस दूरता और पावर भितर आमर फर्मूलाटा कौन है मध्य जो संपर्क हूँ परस्पर प्रतिलोमी तो एफ इजिकल टू ये हम 1/p जोटा कि हम 1/+2.5p डायोप्टर जोटा कि आम सल्व कले कौन हम 2.5 हो 5/2 तो 1/5/2 तो यहाँ जो आम डायोप्टर लिखा तो कौन हो 1/5/2 जब सल्व करें 1 × 2/5 जोटा हम 2/5 डायोप्टर ऊपर गले इनवर्स तो डायोप्टर इनवर्स है मीटर जोटा कि 2/5 मीटर तो 2/5 मीटर माने केते एटा हूँ 0.4 है ना 2 डिवाइड जब हम 5 द्वारा करिया तो 5 6 20 तो 0.4 तो 0.4 कोड़ी अच्छे तो 0.4 मीटर है हमारा आंसर तो 0.4 है बी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 तो 16 को जो अवतल लेंस रो फोकस दूरता केते देछि 25 लेंस सम्मुख रे से कहि कौन ना गोटे वस्तु को केते दूर रे रखिले तार प्रतिबिंब लेंस ठारू 20 सेंटीमीटर दूर रे सृष्टि हबो ताने कौन कौन देछि आसे देखिया तो फोकस दूरता अवतल उत्तल हेले पॉजिटिव अवतल हेले नेगेटिव फोकस दूरता तो अवतल लेंस माने ये बळे हबो लेंसटा ये बळे हबो एटा होछि डाइवर्जिंग लेंस माने ये बळे यदि प्रमुख अक्ष सहित समांतर हेकी रश्मि गुडा आसीबो तो से कौन हबो एमती डाइवर्ज कर जिवो एमती डाइवर्ज तोड़ा कौन लेंस वस्तु जो पटरे से पटरे कौन आमर प्रतिबिंब सृष्टि हम तो पछू बैक कले ये प्रतिबिंब सृष्टि हम तो प्रतिबिंब सृष्टि है भि भी माइनस हम आ एफ तो माइनस तो भि माइनस एफ माइनस तेणुक आम ये सल्व करवा एफ के 25 ताने एफ के एफ हो
-25 कहना अवतल लेंस फोकस दूरता -25 सेंटीमीटर सेपरी केते दूर रे वस्तु रखियो ताने वस्तु रो दूरता हला u तो एटा पछारछि हमर u बाहर करिया तो u केते हमें बाहर करिया तो v देछि कोन प्रतिबिंब लेंस ठार केते दूर सृष्टि होछि एठी v जतले हमर v हो कोन माइनस एने चित्र करि देखौछल तुमके एबे तो v केते हो v = 20 सेंटीमीटर दूर माने जेतु लेफ्ट साइड तो हमें कोन करिया माइनस तो -20 सेंटीमीटर ए सब वैल्यू यदि हमें पुट करिया लेंस फार्मूला कोन ना लेंस फार्मूला हला 1/v minus 1/u equal to 1/f ए जदि हम सब वैल्यू पुट करिबा तो केते होबो एटा 1/u को गोटे साइड कर दो कना u रो वैल्यू हम बाहर करिया तो 1/u माइनस अछि सब गले प्लस हे जो 1/u equal to केते होबो 1/v minus 1/f याद लगी हम याको वैल्यू पुट करी देखिया कोन हबो तो वैल्यू जदि पुट करिबा तो केते हबो आस देखिबा तो हम वैल्यू पुट करले केते हबो ना 1/u equal to केते तो 1/-20 minus 1/-25 एटा जो सॉल्व कले माइनस चिन्हटा ऊपर नै गेले -1/20 माइनस माइनस कोन हे जो प्लस 1/25 20 और 25 रो लॉस हो गेला 100 लॉस अब 100 ले 20 5 तो एटा अब -5 प्लस 25 चो हेले एटा अब 4 तो कते हे जो हमरा -1/100 एटा कार वैल्यू ना 1/u रो वैल्यू तो u रो वैल्यू केते हे जो माइनस तळु गले u रो वैल्यू हे जो ऊपर 1 1 समान तो u इक्वल टू केते -100 तो हमरा वस्तु केते दूर रहले हेबो तो वस्तु को हमें जदि रखिबा 100 सेंटीमीटर दूर से पुनी लेंस रो लेफ्ट साइड रे त माने सेति पे माइनस आंसर बाछि तो एठी आंसर कोडा हबो तो a इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्वेश्चन नंबर 17 ना सुस्थ और स्वाभाविक दृष्टि संपन्न व्यक्तिर स्पष्ट दर्शन रो सर्वनिम्न दूरता केते एडा हम समस्त घोषी मन रखिथिबो तम सब केते 25 सेंटीमीटर बी हो जे हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 वर्तमान सॉल्व करिवा तो 18 कोन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी आलोकर विचरण जोगु होई न थाए आलोकर विचरण जोगु होई न थाए कोडा देखिया तो हमर एटा सी हो जे करेक्ट काई ना आलोकर विचरण जोगु ए सब हुए कोन कोन हुए देखिबा आलोक आकाश वर्ण नील हबा एटा आलोक विचरण जोगु हुए सेपरी गभीर समुद्र जलर वर्ण जो देखा जाय हमर नील एटा भी आलोकर विचरण जोगु होई थाए गछर पत्र सबुज देखा जिबा एटा आलोकर विचरण जोगु हुए ना तनु एई हबा हमर करेक्ट आंसर आ सूर्यास्त समय रे सूर्य लाल देखा जाय ये भी आलोकर विचरण जोगु होई थाए आ सूर्य उदय समय मध्ये कोन सूर्य लाल देखा जाय सेटा भी आलोकर विचरण ये सब आलोकर विचरण जोगु होई थाए तो जोगु होई न थाए कोडा ना सी सी हो जे हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखि हमर क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कोन दे खंडे तार रे 1.5 एम्पियर विद्युत स्रोत ताने आई रो वैल्यू देदला 1.5 केते समय ना 1 घंटा प्रवाहित हेले तो टी देदला तो मोट प्रवाहित चार्ज रो परिमाण तो q बाहर करिया को पड़िबो तो आसो बाहर करिया तो आई केते देला y देला 1.5 एम्पियर से बळा आउ कोन वैल्यू देछि तो t केते समय केते 1 घंटा देछि 1 घंटा 1 आवर तो आवर हमर एसआई यूनिट न ताकू हमें सेकंड रे कन्वर्ट करले हबो केते 3600 सेकंड तो हमर मोट विद्युत चार्ज रो परिमाण पछाछि तो विद्युत चार्ज कोन हम q बाहर करिया तो q फार्मूला कोन q i t q हो जे हमरा i t कहीं i रो सूत्र कोन i हला q by t तो q हे जो i t तो ए दिटा मल्टीप्लाई कर देले हमरा आंसर बाहर पड़िबो तो 1.5 into केते 3600 तो 1.5 हला हम केते
3/2 जो जानी परना आगु जदी हमें भग्नांश करबा केते हबो तो 15/10 कैंसिल कला पर केते हबो तो 1.5 हबो 3 रो आधा तो 3/2 इनटू एटा केते 3600 तो एटा 2 को 3600 कैंसिल कले केते हिजो 1800 तो 1800 गुणन 3 18 3 54 केते हिजो 5400 तो हमर चार्ज रो एक कोन कूलम तो सी कूलम तो 5400 कूलम तो सी हो जे हमर करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करिया तो क्वेश्चन नंबर 20 कोन देछि गोटे परिपथ तीनोटी 240 240 ओम प्रतिरोध पुनी समांतराल संयोग कले से गोटे समतुल्य प्रतिरोध केते तो समांतराल संयोग कले मनकर समूह प्रतिरोध हला आर तो तार फार्मूला कोन 1/r = r1 केते तीनोटी तीनटा अंक केते 240 तो r1 भी 240 r2 240 r3 240 जे फार्मूला हम पके 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 वैल्यू पुट करिया r1 जगह केते हमर r1 जगह पकेया केते 1/240 r1 हला 240 वैल्यू प्लस 1/240 तो ए बड़ी 1/240 हमर तीनटा ऐड करिया जा 1/240 रे 3 मल्टीप्लाई कर दो छया तो एटा जदी हमें ऐड करिया केते हे जो ना 3/240 तो 3/240 के हम जदी कैंसिल करिया 3 रे 3 3 के 3 3 8 तो एटा के जो 80 80 एटा हे जो केते 1/80 तो एटा r रो वैल्यू नो एटा हला 1/r रो वैल्यू तो 1/r जदी 1/80 तो ए वैल्यू टा आ सहित समान तो हमर r वैल्यू केते r हो जी 80 तो r हमर केते हे जो 80 तो r हे जो 80 तो r 80 ओम हबो तो 80 ओम को ऑप्शन अछि सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखबा on देछि गोटे बल्ब रो फिलामेंट रो प्रतिरोध केते देछि 1 1100 माने प्रतिरोध r देतला r केते देतला 1100 1100 ओम दे देछि r कहिछि एई सेई बल्ब को 220 वोल्ट विद्युत लाइन रे लगा जाए ताने भी देला विद्युत विभवांतर केते केते वोल्टेज रे एटा को लगा जाई 220 वोल्ट तो आर भी देछि हमर विद्युत स्रोत केते प्रवाहित होय केते माने विद्युत स्रोत आई बाहर करिया तो आई रो कोन फार्मूला तो आई हला तो हमर आर हला v/i तो सेडी जदी हमें सॉल्व करिबा तो आई हे जो केते v/r तो v/r तो v/r हले v केते 220 डिवाइडेड बाय 1100 एटा कैंसिल करले 0 0 कैंसिल हे जो 0 0 कैंसिल होला परे हम 11 रे कैंसिल 22 डायरेक्ट 22 पंचा 110 तो केते हे जो 1/5 तो 1/5 ऑप्शन कोन दे जी पॉइंट आकर दे तो आगु पॉइंट कले केते हे जो तो 0.2 तो जोडा कि 0.2 एम्पियर तो 0.2 एम्पियर हला ऑप्शन अछि सी तो हमरा 21 नंबर करेक्ट आंसर हला सी सी इज द करेक्ट ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 गोटे विद्युत मोटर 220 वोल्ट लाइन रो विद्युत मोटर केते तार विभवांतर चलछि तो 220 तो 220 हला v विद्युत विभवांतर v रो वैल्यू देछि तो केते विद्युत स्रोत से लाइन रो नउछि ना 5 एम्पियर त माने आई केते विद्युत स्रोत से लाइन रो नउछि मोटर तो 5 एम्पियर तो आई देला केते विद्युत स्रोत रो परिमाण 5 एम्पियर तो मोटर पावर पावर माने कोन बाहर करिया p बाहर करिया तो हमर p रो सूत्र कोन पावर बाहर p = vi ये तीनटा सूत्र अछि हम ए गोटे सूत्र यूज करिया v केते 220 into 5 ताको मल्टीप्लाई कले केते हे जबो 220 into 5 हम जदी मल्टीप्लाई करिया तो शून्य रहइबो 22 पंचा केते 110 तो 1100 हमर कोनटा हबो v माने वोल्ट इनटू एम्पियर कोन हबो ना वाट वाट तो 1100 वाट को ऑप्शन अछि ना नाही तो किलोवाट दे तो हम किलोवाट रे कन्वर्ट करले 1000 डिवाइड करले तो हम केते जो 1.1 किलो वाट जोडे हम ऑप्शन देज गोटा बी इज द करेक्ट आंसर 22 रो आंसर हला 1.1 किलोवाट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया
23। ତ 23 ରେ କଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଧାରୀ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଳଖ ସୋଲେନଏଡର ଭିତର ଅଂଶରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ଭିତରେ କଣ ହବ, ସୋଲେନଏଡର ସବୁଆଡେ ସମାନ ଥାଏ। ତ ଆମର ଏଟା କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଦେଖିବା, ଡି। ଡି ଅପସନ ହଉଛି, କାରଣ ସେଠି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ କଣ ହବ, ସବୁଆଡେ ସମାନ। ତ ଆମର ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24, ଲଘୁ ପତନ ହୋଇଥିବା ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କଣ ହୁଏ? ଲଘୁ ପତନ ମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଭ ୱାୟାର, ଏଠି ଯାଇଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ ୱାୟାର ଦିଟା, ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ତ ରେଡ କଲରରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଏ, ତ କରେଣ୍ଟ ଲାଇଭ ୱାୟାରରେ ଯାଏ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, କରେଣ୍ଟ ତାର ଛିଡିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ କଭର, ତ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଟା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଳେଇବ, ତ ସେଟା ଲଘୁ ପତନ ମାନେ ସର୍ଟ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ। ତ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଘୁ ପତନ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ଏଟା ଡବଲ ବାଟରେ ଯିବ। ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ କଣ ହେଇଯିବ, ବଢିଯାଏ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ। ତ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଦେଖିବା, ସି। ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ଦେଖିବା, ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜିର ଦେଖିବା। ତ କଣ ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକା, ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଆଲଫା କଣିକା, ହିଲିୟମ He2+ କୁ କହନ୍ତି ଆଲଫା କଣିକା। ତ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆମର ବୁକ ର ରାଇଟ ସାଇଡ ହେଲା ପୂର୍ବ, ଲେଫ୍ଟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ତାମାନେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କଲା ବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଲଫା ମାନେ ପଜିଟିଭ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜର କଣିକାର ଗତିର ଦିଗ ଏଇଟା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଇ ର ଦିଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜର କଣିକାର ଦିଗ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ଆଇ ର ଦିଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର କୁଆଡେ, ତ ରାଇଟ ସାଇଡ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ବ, ଲେଫ୍ଟ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ। ତ ଉତ୍ତର ଆମର ବୁକ ର ହେଲା କୋଉଟା, ଉପରଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ତ ଉତ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଛି, ତ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଛି ମାନେ ଗତିର ଦିଗ, ତ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ବଳ ପଡିଛି ସେଟା ବଳର ଦିଗ ଏଫ। ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କୁଆଡେ ହବ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ବି ର ଦିଗ କୁଆଡେ ହବ। ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ୟୁଜ କରିବା, ତ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମରେ କଣ ନା, ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାମ ହସ୍ତକୁ ନିଜର ବାମ ହସ୍ତକୁ ଏପରି ଭାବେ ଖୋଲିକି ରଖିବ, ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି, ଗୋଟେ ହେଲା ତର୍ଜନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖୋଲିକି ରଖ। ତ ତର୍ଜନୀ ହେଲା ଆମର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ, ଯୋଉଟା କି ବି, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଯଦି ତର୍ଜନୀ ହୁଏ, ବି ର ଦିଗ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସଂକେତର ବି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଆଇ ର ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ, ତାହେଲେ ବଳର ଦିଗ କଣ, ଏଫ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖୋଲି ରଖିବା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି, ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି, ତ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମର ଯୋଉ କଣ ଦେଇଛି ତର୍ଜନୀ, ଏ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କୁଆଡକୁ ହବ ନା ଉପରକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ପେପର ର ମାନେ ତମ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଆର ଉପରକୁ ହବ। ତ ଉପରକୁ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ଡି। ଡି ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଡେଲ क्वेश्चन सेट 1 ର ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ 2026 ର ମଡେଲ क्वेश्चन सेट 1 ର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟା 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ର ସଲ୍ୟୁସନ ସରିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିडियो ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆହୁରି ମଡେଲ क्वेश्चन सेट କୁ ଆଣିବି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେକ୍ଚର ଭିडियो ମାନଙ୍କରେ ବାକି ମ୍ୟାଥ ମଡେଲ क्वेश्चन सेट ଗୁଡିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏଇଭଳି କରି ଆମେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ର 5-10ଟି ମଡେଲ क्वेश्चन କୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଭିडिଓଟି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ଭିडिଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଦ ଭିडिଓ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ।